म्यूट करो। Ajan, Asha is asking, is nirvana a ayatana? We have to understand what is Nibbana, not just whether Nibbana is Ayatana or not. हमें हमें समझना चाहिए कि निर्वाणा क्या है। निर्वाणा आयतना है या आयतना नहीं है। अजान, If, if there's no understanding of Nibbana at all, can we say whether it's Ayatana or not Ayatana? अगर हमें निर्वाणा निब्बाना की कोई समझ नहीं है तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि वो आयतना है या आयतना नहीं है। अजान, So that is in Hindi or in English? क्या फर्क पड़ता है वो इंग्लिश में हो या हिंदी में हो। अजान, คุณตรัสรินเข้าใจไหม เมื่อกี้ภาษาที่เขาพูดฮินดีค่ะท่านอาจารย์เขา แล้ว คุย เขา กับ ตอบว่าไง So you- Akhil, what was the answer from Asha? आशा, तुम इस पे क्या जवाब देना चाहती हो। हम इस आशा, पर ये आवाज नहीं आ कहना, रही है। हाँ अब आ रही है। हाँ आ हम रही इस है, पर आवाज ये आ रही है। कहना चाहते हैं कि हाँ ये सच है कि अगर हमें निर्वाणा की समझ नहीं है तो हमें नहीं जान सकते कि निर्वाणा आयतन है या नहीं। Taswir ma'am, Asha is saying what Ajan is speaking is truth, that if we don't have any understanding of Nibbana, then we don't have understanding whether it is real or it's unreal. that's why how much ignorance is, no matter even now. See, no understanding of what is there now, and try to understand Nibbana. Is it possible? इससे ये पता चलता है कि हमें कितनी नासमझ है, कितनी अविद्या है, और हम निब्बाना की बात करते हैं, और इस वक्त कितनी नासमझ है, इससे ये भी पता चलता है। इसको समझना बहुत जरूरी है। इससे सहमत हो आशा। बिल्कुल सहमत। That's why we राइट have to आजाद। learn to understand what is now in order to understand that it's not Nibbana. What is there now is not Nibbana. इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है हमको ये समझना कि इस वक्त क्या है जो कि निब्बाना नहीं है। And हाँ why does one want to understand or to reach or to attain Nibbana? किसी एक व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि निर्वाणा तक पहुंचने के लिए या वहां तक जाने के लिए कितनी समझ की समझ कितना जरूरी है। No matter how much we talk about anything, but when it's not there now, can it be known? कोई कितना भी उस विषय में बात कर ले, लेकिन अगर उसको समझ नहीं है और वो इस वक्त नहीं है तो क्या कोई फर्क पड़ता है। Is there नहीं। ignorance now? आशा, क्या इस वक्त अविद्या है। हाँ यस। राइट Not आजाद। just yes. Not just yes. There must be more and more considering about the truth. There's not Nibbana now. What is it? अगर इस वक्त आशा, इस वक्त अगर निब्बाना नहीं है तो इस वक्त क्या है। इस वक्त अविद्या है, तीन है, बहुत कुछ है। Ajan, Asha is saying in this moment there is avidya, there is seeing, and many other also. So what is meant by Nibbana? तो फिर निब्बाना का मतलब क्या है आशा। हाँ ये सही है कि अभी निर्वाणा नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन उठते हैं, उनका आंसर फिर कहाँ से लिया जाए। अगर Ajan, अजान नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। Ajan, this is right that at this moment there is no nibbana,
but in the mind there are many questions which arises at this moment. If Ajahn will not tell me, then who will tell? I will tell you to understand the truth of what is there right now. आशा अजान तुम्हें इस वक्त का सच बताएंगी कि क्या है. Do you think that you can understand Nibbana when there's not Nibbana now? आशा तुम्हें क्या लगता है कि तुम निब्बाना को समझ सकती हो इस वक्त जब निब्बाना नहीं है? नहीं समझ सकते. This नो अजान. This has to be very firm, parami, satya parami. Be true to the truth. आशा ये एक बहुत ही सच्चा पारमी है, सच का भी सच. So, what is the truth of the purpose of listening to the words of the Buddha? तो फिर भगवान क्या मतलब है भगवान बुद्ध के शब्दों को सुनने का? What बताओ. is why listening to the words of the Buddha? What for? बुद्धा के वर्ड हम सुनते ही इसीलिए हैं कि हमारी समझ बढ़े, हम सच को जानें और सच को समझें, जो कि हमारे वर्तमान में हो रहा है. We listen to the words of Buddha because to have more and more understanding at this moment what is more happening, and to have the understanding of the realities. So, anyone who'd like to experience Nibbana without understanding what is there now, is it right or wrong? ऐसा तो कोई आदमी निब्बाना को अनुभव करना चाहेगा इस पल में, जबकि उसको कोई समझ नहीं है ये सही है या गलत. ये गलत है. अजान, दिस इज रॉन्ग. This is very important, the core, the heart of listening to the teaching, just to let go ignorance and all kinds of akusla. ऐसा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो इससे पहले सवाल अजान ने पूछा था, और ये बार बार दोहराया जाना भी चाहिए, जिससे ये कुशल और अकुशल के बीच में उसमें भेद पता चले. अजान. What about the end, all kinds of reality which is conditioned to arise? The end never arises again anymore. ऐसा उस बात की उस बात पे कोई बात है कि जब जो सच्चाइयां अपीयर होती हैं और उनका जो एंड होता है, जो उनका अंत होता है, उसकी जो सच्चाई होती है जो कभी दोबारा नहीं आती है, उस पे क्या है विचार? Thus one see the precious of the end of all kinds of akusla. आशा आजान यहाँ पे ये भी जोड़ रही है कि वो व्यक्ति उस चीज को भी देखता है कि जितने अकुशल हैं उसका भी एक अंत है. Is it better than just understand the meaning of the word nibbana? तो फिर क्या सिर्फ एक शब्द निब्बाना, उसकी उसकी मीनिंग, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा ही समझना है? Just know the end of everything, no more arising, never arise again of all kinds of what are there now. तो फिर आपको ये जानना चाहिए कि बहुत सारी ऐसी बात जो फिर कभी अराइज नहीं होती है. Is that the point of listening? The क्या word क्या आशा यही पॉइंट है इस बात को लिसन करने का, इस शब्द को? is not just understand the meaning of the word nibbana, but what's the way to attain that state? No arising, no conditions to arise again. आशा क्या इस शब्द का निभाना का जो मीनिंग है बस वही समझना है
क्या उसकी जो कंडीशन है, जो क्या उसकी स्टेट है, जो वो फिर से अराइज होगा या नहीं होगा, उसको नहीं समझना है? क्या वो चीज महत्वपूर्ण नहीं है? So now, does anyone see the attachment to no matter what, even just the word Nibbana? क्या कोई भी जो अटैचमेंट है, अजान बोल रही है कि जो वर्ड अटैचमेंट है और जो वर्ड निभाना है, क्या उसका उसका मतलब नहीं है कुछ? क्या उसको नहीं समझना चाहिए? When समझना they चाहिए। understand, okay, what did she say? क्या बोले आप लोग? मैंने कहा नहीं, समझना चाहिए, समझना जरूरी। Ajan, Asha is saying it's very important and it has to be understood. That's why keep in mind, if there's not yet the understanding of the truth of what is there now, no way to understand whatever is there in life. इस पल, इस वक्त, इस मौके का जो सच है, उसे उसको समझना, उसकी समझ बहुत महत्वपूर्ण है। इससे महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा अजान बता रही हैं। सही And है। and who knows, this is the only way to understand what we say, the Four Noble Truths, or letting go all kinds of Dhamma, Akusala Dhamma and Kusala Dhamma as well. अ, आशा, यहाँ पर अजान एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हैं कि किसको मालूम लेटिंग गो शब्द इस्तेमाल किया है। जाने दो सारे धम्मास को। लेटिंग गो का मतलब होता है जाने दो सारे धम्मास को, और उसकी समझ और उसको वो कितने महत्वपूर्ण है, इस विषय में भी मालूम आपको करना चाहिए। ये रिपीटेड सेक्शन एक बार फिर से देखना, अजान ने बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड को यहाँ पे मार्क किया है। अजान। So as long as there are still conditions for whatever arise, it has to arise. तो आशा, जो भी कंडीशन होगी, जो भी शर्त होगी, उसे अराइज होने के लिए, उत्पन्न होने के लिए, वो फिर वैसे ही उत्पन्न होगी जैसे कि वो शर्त होगी। So only understanding the conditions for whatever arise and see the danger and letting go of such thought or idea gradually, little by little, it's a way to let go, to understand exactly, clearly what Nibbana is. आशा, अजान उस तरफ इशारा दे रही है, लेटिंग गो की तरफ फिर से इशारा दे रही है, और समझ की तरफ इशारा दे रही है। निब्बाना के रूप को, निब्बाना के प्ररूप को लेके इशारा दे रही है, और धीमे धीमे कैसे उस शब्द को समझा जाए, उस तरफ हमें अग्रसर होना चाहिए। How long every Buddha to be developed in order to realize the truth, including Nibbana? भगवान बुद्ध को कितना समय लगा इस सच को इस सच को और इस क्रम को समझने के लिए? So बहुत as Uh, much Ajahn okay, Asha is saying uncountable. that's it. That's it. So the moment of understanding only is the very subtle way to develop understanding, to let go of ignorance, the cause of all kinds of akusala and dhamma. ऐसा जो 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 पल है समझ के लिए, वो बहुत सूक्ष्म है, बहुत तेज है, बहुत जल्द है, और उसी से ही हमारा जो लेटिंग गो शब्द फिर से अजान ने इस्तेमाल किया है आकुशला को जानने के लिए। लेटिंग गो मतलब कोई चीज चली जाए या छोड़ दो उसको, या वो आपके बहुत समय बाद वो चीज चली जाए, लेटिंग गो से बोलते हैं। तो अजान उसी को यूज कर रही है कि ये शब्द को समझने के लिए कितना समय और कितनी समझ की जरूरत है। So बहुत। is this true? क्या ये सही है? हाँ, सही राइट है, अजान? बहुत समझ की जरूरत। Ajan, she is also saying that she needs, it has to be more understood, and it may take, nobody knows how much time it will take. And that is the meaning of bhavana, the way
right understanding begins and develops so very gradually, like holding the knife handle until it's worn away. आशा अजान एक शब्द भावना की तरफ रेफर कर रही है और वो ये भी बोल रही है कि उसकी भी राइट अंडरस्टैंडिंग होना. अजान, कैन यू रिपीट दिस अगेन? Is this a way to wear away ignorance, which is the cause of all kinds of Dhamma? अविद्या ही एक कारण है जो कि मूल सिद्धांत और मूल कारण भी है इस तरीके के धम्मा के लिए. ऐसा दोबारा जो है इसे वॉच करना यूट्यूब में वीडियो में. If anyone just jump to the word of the teaching and try to find out, no understanding how subtle realities now are, as Buddha had enlightened. अच्छा, समझ में आया ये वाली बात? नहीं, हम थोड़ा ध्यान लगा. And you अजान, feel it now? अजान प्लीज रिपीट. Pardon? अजान प्लीज रिपीट. Okay. And you feel better now? No thought about experiencing Nibbana, but understand what is there little by little. अजान, सॉरी आशा, अजान आपसे ये पूछ रही है क्या अब आपको अच्छा लग रहा है जब आपका थोड़ा समझ बढ़ रहा है, भले ही वो समझ को लेके हो जिसमें इस वक्त निब्बाना नहीं है. And what is the way Buddha taught? Is it not just like now? To understand what is there as it is. तो फिर भगवान बुद्ध ने जो हमको सिखाया, जो रास्ता बताया, तो वो क्या है जो कि इस वक्त है? Comparing the moment when you just thought about Nibbana, what's Nibbana, and so on, and now no thought about how to attain Nibbana, but understand what is there naturally. आशा, हम तुलना करते हैं शब्द निब्बाना के बारे में और हम ये भी सोचते हैं निब्बाना तक पहुंचने के बारे में, बल्कि हम ये नहीं सोचते कि इस वक्त क्या है, और हम उसे तुलना भी आपस में इन सब चीजों को लेके करते रहते हैं. सही कह रहे हैं भैया. राइट अजय? Truly understand what is there, letting go the idea that one would like to experience this or that deeper and deeper without beginning to develop understanding, to see how deep reality is, how much time to develop understanding, to really understand the nature of what is there now. आशा, अजान ये भी बोल रही है कि जो लेटिंग गो की बात अजान बोल रहे हैं, तो वो कितना गहरा है, उसमें कितनी समझ है और उस पे कितना आपको काम करना है और उसमें कितना समय काल परिस्थिति लग सकती है, ये किसी को भी नहीं मालूम. To be true, to be truthful, what तो about right क्या हमें now? Better than be just a moment ago or not? आशा, तो क्या हमें इस वक्त सच होना है, सच्चा होना है इस पल के लिए, इस पल का सच समझने के लिए? बिल्कुल. राइट अजान? See, understanding the very subtle path is the only way, the samadhi of the Eightfold Path, unknown by many people who just try to do, not to understand the truth. आशा, अजान रेफर कर रही है समझ को लेके और सम्मादिति को लेके, जो इस पल है, जो कि हमारे अष्टांग मार्ग में है, इसलिए उसको समझना ऐसे ही है और इसी तरीके से उसको समझना चाहिए.
Do you know the teachings of the Buddha and who's him a little more? क्या तुम जानती हो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को और अब थोड़ा और उनको जानने लगी हो? थोड़ा थोड़ा। वेरी वेरी लिटिल अजान, वेरी स्मॉल, लिटिल Okay. मोर। Do you appreciate the truth? क्या तुम अब सच को, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को, सच को अप्रिशिएट करती हो? बिल्कुल करते हैं। राइट अजान, शी अप्रिशिएट। Life goes on each moment by conditions. No one, nothing can be done. जीवन चलता रहता है यूं ही शर्तों पे, निरंतर आगे बढ़ता रहता है और ये क्रम श्रृंखला कभी नहीं रुकती है। Only begin again and begin again to consider the word of truth of what is there very carefully, little by little. तो हमको शुरुआत फिर से करना है, हर बार एक शुरुआत करना है, थोड़ा सा शुरुआत करना है, स्लोली शुरुआत करना है और बहुत संभल के चलना है। सच को समझने के लिए बहुत संभलना है आपको। Is there any other way to realize the truth of what is there right now as Buddha realized? क्या कोई और रास्ता है सच को समझने के लिए, भगवान बुद्ध के रास्ते को छोड़कर इस मौके, इस पल के सच को जानने के लिए? बताओ ऐसा। नहीं, कोई और रास्ता नहीं है। नो अजान, देयर इज नो अदर वे देन द बुद्धा वर्ड्स। So is there enough understanding of the truth of what is there right now? तो क्या ये समझ पूरी आपकी हो गई है इस पल को समझने के लिए, इस पल पे जो सच आ रहा है या जो सच है? नहीं, समझ पूरी नो, नहीं हुई। नो अजान। So from now on, is the path leading to understand the nature of what is there as it is very subtle? तो ऐसा ये पता चला कि जो मार्ग है जो हमें समझ की तरफ लेके जाता है वो कितना सूक्ष्म है। हाँ, बहुत सूक्ष्म। राइट अजान, इट्स वेरी सटल। Feeling better अच्छा again? अच्छा लग रहा है ऐसा? बहुत। यस अजान, शी इज फीलिंग बेटर। Is that Dhamma too? The feeling moment? तो Just feeling जिस better? वक्त जिस वक्त तुम्हें अच्छा लग रहा था, क्या उस वक्त वो भी धम्मा है और तुम्हें बिल्कुल अच्छा धम्मा लगना है। भी धम्मा है? राइट अजान, दैट बिल्कुल। इज ऑल्सो धम्मा। If there's not yet understanding the truth of that moment, little by little, closer and closer, can there be the moment of understand what Buddha said? All dhammas, all conditioned dhammas, it's not permanent, arises and falls away right now. ऐसा ये भगवान बुद्ध के शब्दों को लेके अजान यहाँ पे रेफर कर रही है और अजान बता रही है कि जितने भी धम्मास हैं वो परमानेंट नहीं है, जो जो उत्पन्न होते हैं और जो भंग हो जाते हैं। इसको इसकी समझ होना, इसको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है अजान। But Asa say, आशा, तुमको क्या बोलना है? नहीं, हमें यही इतना बोलना है कि हाँ, ये जरूरी है कि अगर हमारे अंदर समझ बढ़ेगी तभी हम सच को समझ पाएंगे। अगर हमारे अंदर समझ नहीं है तो हम कभी भी प्रेजेंट के सच को समझ नहीं पाएंगे। Ajan, Asha is saying if we have got understanding, then only we can understand, and if we realize uh, the value of प्रेजेंट मोमेंट। the value of the present moment, then we can have a very very little and slow understanding about it. is that the only way? क्या यही मार्ग है? हाँ, यही एक मार्ग है और कोई मार्ग नहीं। Ajan, she is saying yes, this is the only way, nothing else than it. And that moment is such a parami. वही पल सच्चा पारमी है, अजान ऐसा बोल रही है।
अच्छा, हम्म, अजान से सही है, सहमत हैं आप? राइट बिल्कुल अजान, बिल्कुल। राइट Yeah, अजान। very firm, confidence. इस पे आप बिल्कुल, आपको विश्वास है जो आप बोल रही हैं? हाँ, बिल्कुल विश्वास। यस, शी हैज गॉट कॉन्फिडेंस अजान। Not try to do anything at all to know. इसके इसके अलावा तुम कोई प्रक्रिया क्रिया करना तो नहीं चाहती हो इस सच को समझने के लिए? इस सच को समझने और केवल क्रिया प्रक्रिया है ही नहीं, केवल कुछ यही है करना, जो हम कुछ करना भी चाहती हो क्या? नहीं, कहीं केवल जाना भी हम चाहती? सच नहीं, कहीं नहीं। नो अजान, शी सेड नो, ओनली धम्मा, ओनली बाय द धम्मा डिस्कशन हो। So it's only understanding the truth, and the understanding itself let go wrong understanding, ignorance, and clinging, and that is Adidana Barami. When satya is firm, never change at all. आशा अजान यहाँ पे अदाना पारमी की बात कर रही है, जिसे हम अंग्रेजी में डिटर्मिनेशन बोलते हैं, और सच को समझने की बात कर रही है जब तुम इस मौके पे सच्चे होते हो और जब तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग फर्म होती है और तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बहुत सख्त होती है उस वक्त, तो उस वक्त अधिष्ठाना पारमी की ओर जो है अजान आपको ले जा रही है। अजान, Is there viriya as well? क्या Effort. क्या उस वक्त विरिया भी होती है आशा? हाँ, होती है। राइट अजान, इट्स देयर। And is it Nekama Barami as well? तो अजान बताती है कि वो निखम्मा नेकम्मा पारमी भी है। ये निखम्मा पारमी सुना है आपने पहले? हाँ, पाली में है, पाली वर्ड नहीं सुने हैं खम्मा। नहीं सुना है? हाँ, मतलब इस पर कभी चर्चा नहीं हुई जिसको समझ। अजान, she is saying that she has listened this word nikhamma from you previously, but there was no discussion on this particular word nikhamma parmi. She wants to hear little more about it just now. Nekama is let go all kinds of akusala. निखम्मा जाने दो सभी आकुशलों को, इसे लेटिंग गो भी बोलते हैं, निखम्मा पारमी निखम्मा। को। निखम्मा। And only Panya can let go. Attachment, a little less attachment. At और, moment, keeping away things, Dana. और आशा से प्रज्ञा ही है जो ये कर सकती है, लेटिंग गो, जो अजान शब्द इस्तेमाल कर रही है, जाने देती है आपकी आकुशला को। जो प्रज्ञा प्रज्ञा होगी तभी ये हो सकता है, जब विजडम होगा तभी ये हो सकता है। अजान जो है पन्या और शब्द का इस्तेमाल यहाँ पे कर रही है। When you are very important, can you let go some words someone talk about you? जब आप बहुत महत्वपूर्ण हो तब आप क्या ये शब्द लेटिंग गो इस्तेमाल कर सकते? अजान, एक्चुअली आई एम नॉट एबल टू ट्रांसलेट एग्जैक्टली ऑफ दिस वर्ड letting go. Letting go means in the sense of letting go of akushla, letting go of upadana, letting go of all the defilements. Mm-hmm. अच्छा, जितना भी आकुशला है, जितना भी आपका आपका बुरा चीज है जो इस वक्त है, उसको उसको जाने दो। उस संदर्भ में लेटिंग गो इस्तेमाल कर रहे हैं। और अजान उसी लिए वो क्वेश्चन आपसे पूछ रही है, क्या आप महत्वपूर्ण है तो जो चीज इंपॉर्टेंट है क्या उसका भी लेटिंग गो होना है या नहीं होना है? हाँ, होना है, सबका होना। जो चीज महत्वपूर्ण है प्रज्ञा के साथ बिल्कुल होना है। नहीं हो, जाना तो सबको है। मतलब कोई भी चीज अगर लेटिंग गो का मतलब ये है कि
उसके अटैचमेंट से अगर अजान बात कर रहे हैं या भंग होने से बात कर रही है तो होना है, कोई कितना भी इम्पोर्टेंट। लेकिन जब विजडम हो तब, जब प्रज्ञा हो तब, अगर हाँ अटैचमेंट हुआ तो वही, अगर अटैचमेंट हुआ, देखो कहने का मतलब ये है, अगर अटैचमेंट हो या ना हो, भंग तो हर धर्म का होना है। तो अजान का लेटिंग गो खाली अटैचमेंट छोड़ने की बात हो रही है या उसके भंग होने की बात हो रही है, पहले तो ये क्लियर। लेटिंग गो और भंग में कोई रिलेशन आपस में नहीं है। हाँ तो पहले लेटिंग, वाला सही है, पहले वाला सही है, अटैचमेंट। तो तुम उसको बोलो। अजान, Ajan, Asha is saying here is about the word letting go. She is saying that whatever is there, like avidya, about defilements, about the akushla, it has to be let go. But it has to be done. It can only happen when the wisdom is there. Otherwise, if there is attachment, then it can never. That's right. That's why without understanding, how can any kind of akusla be let go? सही हो आशा आप, ये प्रज्ञा के साथ ही होना है, अटैचमेंट के साथ नहीं होना है। अटैचमेंट है तब तो ये कभी भी लेट गो कभी हो ही नहीं सकता। आप सही हैं, राइट अजान? Can Asha forgive? क्या आशा तुम माफ कर सकती हो? बताओ। सब शब्दों मैं कैसे माफ कर सकती हूँ? नो, शी कांट, आशा कांट फॉरगिव। See, so she has akusla. She thinks the akusla is all right, it's good, it doesn't matter. But that is not the word of the Buddha. Ajan, you asked, can Asa forgive? She is talking into that context that there is no Asha and no Asha can forgive. So Asha get angry with anger. right, Ajan. Is it right understanding or wrong understanding? Is it the point of listening to the words of teaching to Right, understand? Ajan. अरे आशा, मैंने तुम्हारी हाँ, बात को रखा कि आशा माफ नहीं कर सकती है, तो फिर अजान थोड़ा हंसी, उस वक्त थोड़ा मुस्कुराई। हाँ, तो अजान यहाँ पे आपको ये पॉइंट कर रही है कि जब आपको समझ हो तो वो समझ आपकी जो है प्रज्ञा के साथ में हो, और उस वक्त जो है आप जो है जाने दे सकते हैं अपने आकुशला को और आपके जो और भी चीजें उसके साथ में जुड़ी हुई हैं। लेकिन कहीं यहाँ पे अटैचमेंट होगा तब ये काम नहीं हो सकता। राइट। राइट अजान, राइट अजान। So study Dhamma, it has to know where is Dhamma and what is Dhamma. Otherwise, it's just in the book. Just copy the word from the book. But what about real Dhamma? Each moment in life is Dhamma. अच्छा, ये अजान का समझ में आया आपको? जैसे कि अजान यहाँ पे आपको एक इशारा दे रही है कि जो शब्द किताब में लिखा है उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस पल पे जो धम्मा है और उसमें भी धम्मा है, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर चीज समझ के लिए है, ना कि कोई चीज अगर कोई बुक में वो शब्द लिखा है तो उसको देख के उसको पढ़ने के लिए। तो उसको समझना, उसकी समझ का जो महत्वपूर्ण है उसकी ओर अजान इशारा कर रही है। बिल्कुल। राइट अजान? So where is Dhamma? तो इस वक्त धम्मा कहाँ पर है? प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट अजान। Okay, so at moment of laughing, is it Dhamma or is it Asha? तो हंसने के समय धम्मा है या आशा है? धम्मा। धम्मा अजान। What kind of Dhamma? Now we begin to learn again, to study again, to think again, to consider again, to get closer to the moment of laughing or any moment right now.
हंसने के वक्त ऐसा कौन सा धम्मा है, उसको हमें अपने में विचार करना चाहिए, उसको हमें समझना चाहिए, उसको हमें कंसीडर करना चाहिए। तो अजान ये फिर से पूछ रही है कि जब हम इसे समझेंगे, इसे कंसीडर करेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो आप ये बताओ कि हंसने के वक्त कौन सा धम्मा है। So are you now close to Dhamma or far away, even it's so near? तो क्या आप धम्म के बहुत पास में हैं अभी, या आप धम्म से बहुत दूर हैं अभी? अजान ये पूछ रही है। देखिए, धम्म तो पास में ही होता है, बस उसकी समझ दूर होती है। Ajan Asha is saying Dhamma is always near, but the understanding is always far. That's why learn to understand the truth. इसीलिए आपको सच समझना चाहिए। The ultimate truth. It's so near, but it's not known at all. होती समझ भी हमेशा पास में है, लेकिन आशा वो मालूम नहीं चलती है। सहमत है? सहमत। राइट अजान। So the word of the teachings of the truth, conditioned moment of getting closer and closer to the moment it's there. As तो earlier. अजान, अजान यू टॉकिंग अबाउट द अरिया, अरिया सच्चा और अरिया। Okay, what is Arya Satya? Any word should be clear. It's not clear enough. That's why we learn about each word that is so very deep. So what is Arya Satya? Ajan, Arya Sacha is a noble truth, which Arya Sacha is a noble truth, Ajan. So is saying now Arya Satya Right, Ajan. for you or for whom? Not me, Ajan, but the reality which is appearing at this moment. So for you, the understanding, learning to understand it, it's a Dhamma. Right, See? Ajan. Right, right, Not right, right. Arya Satya, yes. It's a Dhamma, it's real, but no understanding of its nature at all. So it is Right, Ajan. Right, right, right. not such a Dhamma yet. See, each word should be carefully developed to understand the wisdom of the Buddha. So great that each word has its very full meaning, not as self. Right, Ajan. Right, right. You have to translate. आशा अजान यहाँ पे बात कर रही है सच को, और एक यहाँ पे मैंने पॉइंट यहाँ पे इस्तेमाल किया, शब्द इस्तेमाल किया, जिसे कहते हैं अरिया सच्चा। तो उसका इंग्लिश हुआ नोबल ट्रुथ, यहाँ पे मैंने बोला। तो अजान ने फिर आगे पूछा कि ये नोबल ट्रुथ क्या है। तो फिर अजान ने ये भी आगे पूछा कि वो नोबल ट्रुथ कौन सा है, क्या सीइंग नोबल ट्रुथ है। तो मैंने कहा कि हाँ, यहाँ पे सीइंग नोबल ट्रुथ है। तो उसके आगे फिर अजान ने हमको बोला कि यही एक सच है। For those who just begin to learn, to consider, to understand the truth, even Dhamma is not what is there now yet. आशा अजान यहाँ पे ये भी एक पॉइंट दे रही है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि जिन्होंने अभी शुरुआत करी है धम्म को समझने के लिए, जिनकी अभी शुरुआत हुई है, उनके लिए भी ये सच है। क्या इस वक्त पे धम्म है या धम्म नहीं है, उसका भी एक सच है। बिल्कुल। And yes, राइट अजान। and this is the only way to pay high respect to the enlightened one who realized the truth and share his understanding for everyone who listen carefully to begin to understand his virtue, that he has realized the nature of what is there, everything. आशा यहाँ पे अजान ये भी बता रही है कि यही वो तरीका है
भगवान बुद्ध को कृतज्ञता और उनको सम्मान देने का, उस सच को समझने, वो सच का समझ कितना महत्वपूर्ण है। अगर हम उस सच को समझेंगे तो हम भगवान बुद्ध को सही सम्मान और सही कृतज्ञता दे सकते हैं, चाहे वो सच कौन सा भी हो, जो कि इस पल में है। ये बात तुम्हें समझ सही, में आई? बिल्कुल। राइट अजान, राइट अजान। The only way to pay respect to the virtues of the Buddha, his great understanding, his great भग, understanding, is carefully consider each word. वर्च्यू का मतलब ऐसा विशेषताएं होती हैं, और यही एक सही तरीका भी है भगवान बुद्ध की जो विशेषताएं थी उनको सही सम्मान देने का, जो कि इस वक्त, इस पल, इस मौके पे है, और इसी तरीके से सिर्फ सम्मान दिया जा सकता है। And now, the moment of beginning to be careful considering the truth is the most precious moment in samsara. It has और begun to develop. अजान यहाँ पे बता रही है कि वो सच को समझने की जो शुरुआत इस वक्त पर है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी इस संसारा में नहीं हो सकता। जो सच को समझने की शुरुआत है। आप क्या इससे सहमत हैं? हाँ, राइट अजान, राइट। So now, the more careful, the more paying high respect to his virtues. But we just pass on without careful considering, there will never be moment of understanding who's the Buddha at all. जब तक हम बहुत केयरफुल केयरफुल तरीके से विचार नहीं करेंगे भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का, तब तक हम भगवान बुद्ध को सम्मान नहीं देते हैं। तो इसलिए हमें बुद्ध के शब्द, हर शब्द पे बहुत ही ध्यान पूर्वक विचार करना है, एक एक शब्द को। उसी तरीके से, उसी लिए उस तरह से हम भगवान बुद्ध को बहुत सम्मान दे सकते हैं जब हम उनकी शिक्षाओं के, उनके एक एक सच को समझेंगे। Did Buddha teach about seeing right now? क्या भगवान बुद्ध ने आपको देखने को लेके सिखाया है? How much हाँ, understanding of seeing right now? और आपको इस देखने को लेके कितनी समझ है इस पल में? बहुत कम। वेरी लिटिल अजान, Yes, so वेरी लिटिल। far away from getting closer to realize the truth. राइट अजान, राइट राइट। मतलब बहुत दूर हैं आप अभी भी उस सच से, जो सच इस पल में उत्पन्न हो रहा है, चाहे वो देखना क्यों ना हो। अब आप समझ सकते हैं कि आप उस सच की समझ से कितना दूर हो। So the बिल्कुल। way to understand the virtues of the Buddha, the way to pay respect to his virtues, is at moment of beginning to realize that if there's not yet the understanding of seeing closer and closer, it's useless to listen to the words of the teachings. अगर आप उन भगवान बुद्ध के शब्दों को महत्वपूर्ण तरह से नहीं लेते हैं, फिर कितनी भी बार क्यों ना हो हम किसी भी शब्द को इस्तेमाल करें, चाहे वो सींग हो, आप उसकी समझ से बहुत दूर हैं। आपको भगवान बुद्ध की कोई भी विशेषता समझ में नहीं आएगी। No matter how much one heard about seeing, as long it is moment of getting closer to just understand only seeing, it's not yet the understanding of Dhamma. आप, इससे कोई मतलब नहीं कि आपने कितना सींग को पढ़ा हो या कितना सींग को सुना हो।
जब तक आप उसको विचार नहीं करोगे, जब तक आप उस सच के पास में नहीं जाओगे, तब तक आपको वो सच समझ में नहीं आएगा। The only way to begin to get closer to seeing is now talking about it, not to forget about the truth of it. तो फिर आशा, अगर सीन को समझना है तो उसी के बारे में बात करनी होगी, और वो बात इसलिए करनी होगी जिससे कि वो बात भूली ना जाए। And this is the only way to understand what is meant by the 3 rounds of Arya Satya. और आशा, यही वो रास्ता है जो अजान 3 रास्तों की बात कर रही है, 3 राउंड्स की बात कर रही है, जो अरिया सच्चा के लिए होते हैं। They're seeing all day from life to life, years and years, but no understanding of it without the realization of the Buddha. देखना ना जाने कितने हजार सालों से और भी उससे ज्यादा, लेकिन उसकी कोई समझ नहीं, और कोई समझ नहीं भगवान बुद्ध की शिक्षाओं की। It's so real, it's a Dhamma, it has reason, fallen away, but no understanding of it from morning up to now. वो एक धम्मा है, वो एक रियलिटी है, वो एक सच है, वो उत्पन्न होता है, भंग होता है, लेकिन इसको आप सुबह से लेके दोपहर तक आपको ये बात समझ में नहीं आती है। Reading the whole Tipitaka, the 3 Tipikas, listen to the word, but no understanding the value of really understanding the very subtle moment right now as it is useless. पूरा त्रिपिटक पढ़ना, पूरे तीनों निकाय पढ़ना, पूरा ग्रंथ पढ़ना, लेकिन एक इस पल में जो घटित घटना है उसका उत्पन्न होना और उसका भंग होना, उसकी आपको पता ही नहीं है, तो इतना सब कुछ जानने और इतना सब कुछ पढ़ने से क्या मतलब बनता है। So now, is this moment so very precious to talk again, not to be forgotten about seeing. तो आशा जी, इस पल में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रीशियस इस पल का सच जानने में है, ना कि उसको पढ़ने में। आप कुछ We have heard about sati, say, what is it if it's not now to be known? हमने सती के बारे में सुना है, और सती इस पल में नहीं है, और इस पल में मालूम है कि नहीं वो भी मालूम नहीं है। At moment of considering the nature of sati gradually, without sati, it's impossible. आशा अजान यहाँ पे बता रही है, एट मोमेंट ऑफ कंसीडरिंग सती विदाउट सती, मतलब जब हम इस पल में सती की बात करते हैं तो उस सती को समझने के लिए भी हमें सती की जरूरत पड़ती है। तो उस पे हमें विचार करना होगा, जब सती को समझ कैसे समझे, सती को सती के बिना समझा नहीं जा सकता इस पल में। अजान, Any, at any moment of wholesome chitta, there must be sati. Not forget to think about kusala to the way it is. आशा अजान यहाँ पे बोल रही है कि जब होलसम मतलब जब कुशल होगा, उस मोमेंट पे उस पल में सती जरूर होगी, ये आपको भूलना नहीं चाहिए। Is there any understanding now, even a very little? क्या इस वक्त थोड़ा सा तुम्हें समझ में आया? हाँ। That is not you, but it's a Dhamma, a momentarily Dhamma, just arise to be sati, not to forget about the meaning of the word and right understanding. It's not sati, but without sati and considering,
there can never be a reality arises to understand what is there little by little. आशा, जब तुमने हाँ बोला तो आशा ने कहा कि उस वक्त तुम नहीं हो, लेकिन तुमने हाँ बोला, यही उस वक्त सती है। अगर तुम्हें इस बात की समझ है कि तुम नहीं हो और तुमने हाँ बोला, उस वक्त सती है। और एक आगे मिनट क्या बोले? एक मिनट रुक जाइए, कुछ फोन आ रहा है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, एक मिनट रुक जाइए। अजान, प्लीज कंटिन्यू। हाँ अखिल जी, हम्म आप क्या कह रहे थे? क्योंकि बार बार वो डिस्टर्ब कर जैसे रहा था आपने फोन, बोला, आवाज नहीं। आपने आपने इस सच को कबूला कि वो सच है, तो अजान यहाँ पे ये बोल रही है कि अगर आपको ये समझ है कि वो है लेकिन आप नहीं है, तो उस वक्त सती है, जिसको ये बात समझ में आई कि वो सच क्या है। लेकिन ये आपको पता है कि आप नहीं है, लेकिन एक सच है, लेकिन उस सच की समझ आपको है। तो यही वो मार्ग है, यही वो रास्ता है जिससे धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा समझा जा सकता है। लेकिन बिल्कुल सती 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 के बगैर समझ में नहीं आ सकती। अजान आगे ऐसा भी बोलती है। नहीं, इसलिए सती को समझने के लिए भी सती चाहिए। सही कह रहे या चाहिए नहीं, चाहिए थोड़ा गलत शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। सती को सती सती को सती के साथ ही समझ होती है। हम्म, सती को सती के साथ ही समझ होती है, ऐसा अजान आगे बोल रही है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट अजान को सुनना इस वक्त, इसलिए अजान को बहुत गौर से सुनो। राइट अजान, प्लीज कंटिन्यू। See, just one reality, समझ होती है, just one सती को reality. सती के साथ ही समझ होती है, ऐसा अजान आगे बोल रही है। We can learn to understanding it a little more, a little more. Otherwise, no way if we don't talk about it right now. अगर हम इस पल इस शब्द की या इस बात की चर्चा ना करें, तो क्या ये समझा जा सकता है? नहीं, So, if we don't talk about all dhammas in daily life, how can it be known? It's just in the book. अगर वो सिर्फ किताबों में लिखा रह जाएगा, अगर हम उसको अपने आम तौर की भाषा में, अपने चलन में धम्म की चर्चा ना करें, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। So, हाँ, what level of Ariya Satya Dhamma we are talking about? तो हम लोग इस वक्त कौन से अरिया सच्चा धम्मा की बात कर रहे हैं? बताओ ऐसा, हम लोग इस वक्त इस कौन वक्त, से हाँ, देखिए इस वक्त हम लोग उसके निवारण है उस पर चर्चा कर रहे हैं। अगर हमारी समझ होगी तो निवारण के मार्ग पे बढ़ेंगे। निवारण के मार्ग पे। मार्ग पर अभी हम लोग नहीं गए हैं, निवारण है उस पर चर्चा हो रही है। अजान, शी इज तीसरा टॉकिंग तीसरा that this discussion is of the fourth noble truth. No, I mean that there are 3 rounds of Ariya Satya Dhamma, right? The first round is learning, listening, carefully considering until there is the right understanding or idea about the truth. ओह सॉरी, आशा, अजान जो रिफर कर रही है वो जो 3 राउंड्स हैं, जिसमें आपको बहुत ही केयरफुल तरीके से समझना है, सोचना है, उसको याद करना है, वो 3 राउंड्स के बारे में आशा अजान हमें लेके जा रही है। वो 3 राउंड तुम समझ रही हो कौन से हैं? नहीं, अभी नहीं समझा।
वो पहले 3 राउंड सुने नहीं है आशा अजान से, जो पा से स्टार्ट होते हैं तीनों राउंड? अजान, मैंने ध्यान आया। Ajan, she is not able to recall about the 3 rounds. Are you talking about the Paryati, Patipati or Pativeda? नेटवर्क प्रॉब्लम।อาจาร Hello, ย์คะ Tasmin. ท่านอาจารย์ Tasmin, คะคุณคุณอาชาติจำไม่ได้อะค่ะ เรื่อง3 อันถ้าก็ถามกลับว่าท่านอาจารย์พูดถึง3 รอบนี่คือปฏิปติปฏิเวทะแล้วก็นั่นหรือเปล่าคะท่านอาจารย์คะ think we lost ท่านอาจารย์ yeah, right. I सर was एक्चुअली saying that अगर अगर अजान उसकी बात करें तभी हम लोग इसी पर हैं, ท่านอาจารย์คะ परियति पर। มันเพิ่งจะดีมาเมื่อกี้มันหายไปได้เลยค่ะ ค่ะคุณอาชาติจำไม่ได้ค่ะท่านอาจารย์แล้วคุณอาชาติถามว่า3 รอบที่ท่านอาจารย์พูดนี่หมายถึงปฏิปฏิเวทะแล้วก็เนี่ย ต้อง อะไร คุณจิ๋วเพราะว่า ค่ะ เมื่อกี้นี้โทรศัพท์มันเสียค่ะตอนนี้มันดีแล้ว ค่ะ นะวันนี้ก็จะได้พูดถึง3 รอบ ค่ะ so she will start talking about the 3 rounds again the telephone has some technical problem เชิญค่ะท่านอาจารย์ค่ะ Okay, now we have to be so very careful. We are talking about Ariya Satya Dhamma. That's why we have to learn the truth of what is Dhamma first. आशा हमें इस वक्त बहुत सावधान होना है उस सच को समझने के लिए कि जो कि सच है। अजान ने केयरफुल शब्द का इस्तेमाल किया है और केयरफुल को हम यहाँ सावधानी से सावधान हम इस्तेमाल करेंगे। और इसके पहले अजान जो बात कर रही थी वो तीन राउंड्स की बात कर रही थी और उस पर अजान अभी आगे आएगी। राइट अजान? So now start from the very beginning. There is Dhamma right now. अजान शुरू से शुरू कर रही है ऐसा, क्या इस वक्त धम्मा है? हाँ है। No Asha, no Akhil, no Sujin, no Jaswin. कोई आशा नहीं है, कोई अखिल नहीं है, कोई सुखिन नहीं है, कोई त्रस्विन जी नहीं है। Talk about it again to understand the Satya Dhamma, the truth of what is real. That the truth cannot be changed at all. No, सच बदला नहीं जा सकता है। ये तो बात समझ में आ गई ना अजान की? हाँ बोलो। So Dhamma. हाँ अजान प्लीज। Whatever is here is a Dhamma, and the truth of it is Satya Dhamma. It cannot be changed at all. जो भी धम्मा है उसका जो सच है, वो जो उसका सच है, जो धम्मा है वो सच बदला नहीं जा सकता। तो धम्मा का एक सच है और वो सच का जो सच है जो उस धम्मा का है वो भी चेंज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। All Dhammas are anatta. सभी धम्मा अनंता है। So what appears now is anatta. It has conditioned to arise and it fall away instantly. तो जो भी इस वक्त अपीयर होता है वो अनंता है, जो उत्पन्न होता है भंग हो जाता है, जो कि कंडीशन से है, जो कि शर्तों के साथ है। समझ में आया सर? हाँ नहीं आया आया
बोले अजान को बोलेंगे तो मैं फिर से बोले। अरे So नहीं भाई, now, समझ में आया। राइट अजान? so now it's the firm, very firm confidence of Satya Dhamma. Nobody can change it. It's conditioned to arise and false way. Whatever appears, false way, never to arise again. Anatta, sunyata. अजान कह रही है तो तुम्हें इस वक्त बहुत विश्वास है। जो सच्चा धम्मा की अजान बात कर रही है और तुम्हारे विश्वास की बात कर रही है, और तुम्हें इस बात पर विश्वास है कि वो बदला नहीं जा सकता है, चाहे वो अनंतता हो, चाहे वो शून्यता हो, या फिर वो कुछ और हो। हाँ हाँ, बदला नहीं जा सकता, इस पे Yeah. विश्वास। As अजान long as long as it's not realized yet, it is only the intellectual understanding about seeing, about whatever is appearing anytime. आशा, जब तक वो अनुभव नहीं किया जा रहा है, जब तक वो अनुभव नहीं किया जा रहा है, तब तक वो सिर्फ एक विद्वता है। जब तक वो अनुभव नहीं किया जा रहा है, अजान ने अभी यहीं पे रोका है, जब तक अनुभव नहीं किया जा रहा है, अजान यूज कर रही है शब्द इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। वो सिर्फ विद्वता है तब तक, क्योंकि आपका सीधा अनुभव उसके साथ में कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसकी समझ तो है आपको। तो अजान यहाँ पे इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग शब्द का इस्तेमाल कर रही है। ये बात तुम्हें समझ में आई या नहीं आई? आ गई। राइट अजान? So now they're seeing, does it arise? तो क्या इस पल पे सीइंग है और वो उत्पन्न होती है? हाँ, उस पल पे सीन है और उत्पन्न होती है। राइट अजान? It's known, but it's not realized yet, right? वो आप बिल्कुल जानती राइट तो है हो, जान। लेकिन आपको उसका कोई अनुभव नहीं हुआ है। राइट अजान? So this is the first round of the Four Noble Truths. Understanding what is there now is conditioned, arising and falling away, the first Arya Satya. तो यही फर्स्ट राउंड है फर्स्ट नोबल ट्रूथ का, जिसको जानना और समझना है। And how come? For whatever arises, nobody can stop the way it is because of ignorance and attachment, conditioned attachment. So it keeps on, go on and on because of attachment and ignorance as a cause, the second Arya Satya. ऐसा इसको क्या ये बदला जा सकता है? नो मैटर, अजान बोल रही है कि वहां पर इग्नोरेंस हो, अटैचमेंट हो, या कुछ भी हो, तो भी क्या ये बदला जा सकता है? ये बदला नहीं जा सकता है, नहीं बदला जा सकता है। तो अजान उसी को जो है खोल के विस्तार में बता रही है कि ये ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा। इसका स्वभाव, इसका मूलता सिद्धांत बदला नहीं जा सकता है, चाहे वहां पे अविद्या हो, चाहे वहां पे अटैचमेंट हो, या फिर कोई भी फैक्टर एक्सपेक्ट क्यों ना हो। And this is the first round of the second noble truth. See, just listening, understanding, but not realizing yet. और आशा, ये दूसरा आर सत्य का भी पहला राउंड है, पहला व्रत है दूसरे आर सत्य का भी, कि सिर्फ उसे सुना तो जा रहा है, शब्द को, उस सत्य को सुना तो जा रहा है, लेकिन उस सत्य का कुछ भी अनुभव नहीं किया जा रहा है। अजान? Now, the third Arya Satya, the end of akusla, never to rise again. आशा, यहाँ पे अजान जो है तीसरे आर्य सत्य की बात कर रही है, और वो ये भी कह रही है कि जो आकुशला है वो दोबारा उत्पन्न ना हो, दोबारा ना आए। Is it possible? क्या ये संभव है आशा? दोबारा आए, ऐसा संभव दोबारा नहीं ना है। आए? दोबारा ना आए, हाँ, तो कोई चीज, ये तो संभव है कि दोबारा कोई चीज नहीं आती।
Right, Ajahn, she is saying, yeah, it is not possible that it will come again. So now the understanding of the third of the Four Noble Truths, the first round. तो फिर आशा तीसरे और चौथे आर्य सत्य के पहले राउंड की समझ थोड़ा थोड़ा शुरू हुई. हाँ. राइट अजान. Is there any way to attain that goal? Not any akusala arise again. क्या कोई रास्ता है उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कि तुम्हारा अकुशल दोबारा ना आए? क्या कोई मार्ग है, क्या कोई रास्ता है? आशा. अभी तो कोई रास्ता नहीं है फिलहाल इस समय. At this moment there is no way. At this moment there is no way. And what is the way? The only way. तो फिर रास्ता क्या है आशा? रास्ता यही है कि हम सच्ची समझ हमारी बढ़ेगी जैसे जैसे वैसे वैसे ही हमारा क्लेशा कम होगा, और तो कोई रास्ता नहीं. Ajahn Asha is saying, as there will be more and more understanding, in that way there will be the less akushla. So the understanding right now is the only way. तो फिर समझ, the fourth Arya Satya. तो फिर समझ ही सिर्फ वो रास्ता है जो जिसमें चौथा आर्य सत्य है. बिल्कुल. Without understanding a little more clearer and clearer, how can that be the way? Attaining the realization of the arising and falling way of seeing now. सच की समझ के अलावा जो चौथे आर्य सत्य में है, उसके अलावा और कोई रास्ता क्या हो सकता है? नहीं. तो सिर्फ वही एक रास्ता है जिससे आगे बढ़ा जा सकता है. हाँ, वही एक रास्ता. सच की समझ. हाँ, वही एक रास्ता. क्योंकि और रास्ता अजान अंडरस्टैंडिंग की बात कर रही है यहाँ पे. And more confident. इस पे तुम्हें आत्मविश्वास है पूरा? हाँ. And that is the understanding of the Four Noble Truths, the first round, intellectually. और यही बात है जो पहला राउंड है, उसकी समझ की अजान बात कर रही है, लेकिन वो भी इंटेलेक्चुअल लेवल पे, वो भी बौद्धिक लेवल पे ही है सिर्फ, जो पहला राउंड है. If that's the idea, try to experience reality without any understanding. Is that the way? क्या तुम्हारे दिमाग में ऐसा कोई आइडिया है जो रियलिटी है उसे एक्सपीरियंस कर लेना बिना उसकी समझ के? क्या ऐसा कोई रास्ता है? नहीं, ऐसा तो कोई रास्ता नहीं. No, Ajan, there is no way like that. Does anyone would like to experience Nibbana? तो फिर अजान, तो आशा, आप कोई निब्बाना एक्सपीरियंस करना चाहेगा? नहीं कर सकता है. No, Ajan, not possible at this moment, at this level. Firm, confident? तुम्हें बिल्कुल फर्म और कॉन्फिडेंस हो आशा? हाँ. Right, Ajan, she is confidence and firm. And that is Satya Barami and Adidana Barami and Kanti Barami, Viriya Barami and Nekama Barami. यही है सच्चा पारमी, अजान बोल रही है. चाहे वो निखम्मा हो, चाहे वो विरिया हो, चाहे वो खंती हो, चाहे वो सच्चा पारमी हो, यही वो सच्चा है. बिल्कुल. Is Sati a reality? क्या सती रियलिटी है? हाँ, रियलिटी है. राइट अजान. Can it arise by
at will. Ajahn, sorry, can it arise by? Can sati arise at will? Try to have it so it arises. Is it that way? आशा Can अजान ये anyone पूछ रही try है, to have sati? Can anyone try to have sati? क्या तुमने तुमने कोशिश करी है सती को होने के लिए? नहीं, उसको होने के लिए कोशिश की भी नहीं जा सकती। Ajahn, Asha is saying there is no try for having the sati. This is firm satya. A little more. थोड़ी समझ That's the तुम्हारी और way. बड़ी है, तुम थोड़ा और That's फर्म the हुई हो। way. अजान ऐसा अप्रिशिएट कर रही है तुम्हें। Without this level of understanding, no condition for the second round of Ariya Satya. जब तक ये पहली शर्त पूरी नहीं होगी, जब तक तुम दूसरे राउंड की तरफ नहीं जा सकती, जब तक पहले राउंड का सच तुम्हारा क्लियर नहीं होगा। So now, what's the second round of the Four Noble Truths? तो फिर सेकेंड राउंड चौथे आर सत्य का क्या है, बताओ। It's not directly understanding the nature of seeing. If we just talk about seeing, we just talk about seeing now sees, but the reality, the nature, the moment of seeing is not attended yet. ऐसा जब हम सच की बात करते हैं, जब हम देखने जैसे शब्द के सच की बात करते हैं, तब हम सिर्फ शब्द उस सच की बात करते हैं, लेकिन जो उसका स्वभाव है हम उस स्वभाव को नहीं समझते हैं, लेकिन तो भी हम उस सच की बात करते हैं। तो जब तक हम उस देखने के स्वभाव के सच को नहीं समझेंगे, जब तक हमारी समझ आगे नहीं बढ़ेगी, चाहे वो अजान जो इस बात को रेफर कर रही है वो चौथे आर सत्य को लेके कर रही है। If there's no awareness to the nature of seeing, when seeing is there, how can they be directly experience the arising and falling way of seeing? जब तक हमें उस सच की कोई भी अवेयरनेस को क्या बोलेंगे, जब तक हमें कोई भी जागरूकता उस सच की नहीं है, उस जागरूकता जब तक हमें उसके स्वभाव, उस सच के स्वभाव की नहीं है, जब तक उसकी समझ की ओर हम नहीं जा सकते। चौथे आर सत्य को लेके यहाँ पे बात हो रही है। अजान, Is that right? क्या ये सही है? बिल्कुल सही। राइट अजान, इट्स राइट। A little firm confidence. तुम्हें इस पे थोड़ा आत्मविश्वास तुम्हारा है? हाँ है। राइट अजान, शी हैज। A moment of parami, a little more, to condition moment of direct attention with awareness to the nature, the quality of seeing as not self. अब आशा यहाँ पे अजान पारमी की बात कर रही है और अजान यहाँ पे सीधे समझ की बात कर रही है। जब तक ये क्वालिटी नहीं होगी, जब तक ये पारमी नहीं होगी, जब तक उस तरीके की समझ नहीं होगी, उस सच के स्वभाव की समझ होना, तो अजान वहां पे इस वक्त उस पारमी की बात कर रही है, उस समझ की बात कर रही है। So is there now studying Dhamma? तो आशा इस वक्त क्या धम्मा पढ़ा जा रहा है, स्टडी किया जा रहा है? स्टडी नहीं किया जा रहा है, इस वक्त धम्मा को थोड़ा थोड़ा समझा जा रहा है। Ajan, Asha is saying this work there is no study of Dhamma, but at this moment there is a attempt to have a little more understanding of Dhamma. If there's no hearing, no considering the first round, how can there be the second round, directly understanding the nature of seeing as no one and nothing at all?
अगर ऐसा पहला पहला चरण अगर नहीं होगा, चाहे वो सीन क्यों ना हो, तो दूसरे चरण की तो बात हो ही नहीं सकती है। इसलिए पहला चरण, पहला राउंड ही दूसरे राउंड की तरफ हमको लेके जाता है। और अजान जो इसमें उदाहरण दे रही है वो सीन को लेके दे रही है, वो चाहे पहला पहला आर सत्य हो चाहे वो दूसरा हो। अजान। That's why there must be 3 rounds of understanding Arya Satya. इसीलिए अजान कहती है कि वहां पे जरूर होंगे 3 राउंड्स होंगे सच को समझने के लिए, जो कि आर्य सत्य है। अजान, Is it true? क्या ये सच है ऐसा? हाँ, ये सजान Never change? कभी क्या ये नहीं बदला जा चाहिए, सकता है? नो अजान। नहीं। As much as there is to understand, but there are so many, much more to learn about it. जब तक तुम्हें इसकी समझ है और जब तक तुम इसको समझना चाहती हो, जब तक तुम इसको सीखना चाहती हो। So now understand what is meant by the first round of the 4 Arya Satya. All 4, not just the first or the second. तो अब तुम्हें समझ में आया थोड़ा थोड़ा जो पहला आर्य सत्य है उसके पहले राउंड के बारे में। Even while one is talking about seeing, it has to be understood that it's now we are studying, beginning to study seeing that is there to be known. अजान, अजान सॉरी, 1 सेकेंड। Studying Dhamma is the moment of understanding what is there. For example, seeing, beginning to understand what seeing is, not in the book, but now the seeing sees. आशा, अजान यहाँ पे रिफर कर रही है कि जो सीन किताबों में है उसकी ओर ना जाके, बल्कि उसकी समझ की ओर जाके कि देखना क्या देखता है, उसका अनुभव करना, उसको सीखना, उसको समझना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि जो कि पुस्तकों में लिखा है देखने के बारे में और उसके अभ्यास के बारे में पुस्तकों में लिखा है। वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन देखने का समझना, देखने के रूप में और उसके जो और उसके साथ जुड़े हुए सच हैं उसको जानने के लिए। अजान। Dhamma is everywhere. Dhamma is every moment. Understanding the truth that what is meant by Dhamma is no one, no thing at all, but whatever is there as a reality, it's real, is a Dhamma. So now we are studying the reality right now, not just the word, but to understand the nature of what is there. आशा, अजान ऐसा भी बोल रही है कि धम्मा एक सत्य है, वो हर जगह है, सब जगह है, हर जगह पर भी है, लेकिन उस सच की सच्चाई को समझने के लिए उस पे आगे अजान चर्चा कर रही है। उस सच की सच्चाई को समझने के लिए बहुत डिफिकल्ट है। So now understand Dhamma, understand the study Dhamma, not just in the book or the word, but it's there. Seeing now is a Dhamma, hearing is Dhamma. So learning more about the truth of it to understand the nature of it as no one, and it's not permanent. The first Arya Satya. समझ में आया सर? मैंने आप बताइए। बहुत धर्म संकट में फंसा देते हो आप लोग। फिर से कदो जान बोल दे, समझ जाएंगे। अजान, कैन यू रिपीट दिस वंस अगेन? Okay, studying Dhamma with our understanding where and what is Dhamma now. Can it be study Dhamma? आशा, धम को समझना बिना बिना धम धम को समझना बिना धम को जाने, क्या धम को समझा जा सकता है इस पल में? नहीं, अगर हम जानेंगे ही नहीं कि इस सच का मतलब
जैसे कि एक नाम दिया गया है सीन, तो अगर हम सीन के विषय में थोड़ा भी नहीं स्टडी करेंगे तो फिर उसको समझने का प्रयास भी नहीं करेंगे, अगर उसके सच को जानेंगे नहीं तो। तो तुम चाहती हो कि तुम उसको थोड़ा सा पढ़ो सीन को, उसको जानने के लिए, या उसको समझो इस पल पे बिना पढ़ने की जरूरत है क्या, या उसे सच को जानने की जरूरत है? नहीं नहीं, अगर आप इस पल की बात करें तो सच को समझने के लिए तो जब तक प्रेजेंट में नहीं आएंगे हम सच नहीं समझेंगे। लेकिन मान लो हम चर्चा के ही माध्यम से, हम किताब ठीक है। की बात बंद कर दीजिए, हम हम चर्चा हम के ही माध्यम से हम शब्द हम सुने तभी तो जाने कि सीन वर्तमान में होता है। हम अजान को इतना बोलते हैं पहले, फिर देखते हैं अजान क्या हाँ। बोलती है। Ajan, Ajan here Asha is referring that referring that at this moment what reality is there, like the seeing, it has to be understood first to know what is appearing right now. That reality has to be understood as an it's real by knowing its characteristics and by its function. What Asha is referring here, rather than to that thing reading in the book. Because you see that reading in the book is just like listening to the words of the Buddha. Is that right? Just like sitting up uh, and looking at him, listening the word from him, exactly the same. Because what the word is just what Buddha taught. For example, the sound of the word taught by the Buddha, Nama, see, just the word Nama, is real. It's a sound from the enlightened one, long time ago. Just talk about seeing, see, the same word, to develop the understanding of the truth that he has enlightened. ऐसा ही बात समझ में आई? अजय ने बड़ा स्लो बोला, ही समझ में आई बात? नहीं, एक्चुअली बाहर एक्टिविटी कुछ हो रही तो हमारा ध्यान उस पर। आ जाओ पास, इधर आ जाओ अब। मैं ये कह रहा हूँ, अजान यहाँ पे ये रेफर कर रही है कि जिस तरीके से भगवान बुद्ध ने सींग के बारे में चर्चा करी और सींग को बताया कि ये नामा है, नामा, और फिर भगवान बुद्ध उसकी चर्चा करते हैं, उसके बारे में आगे बताते हैं, तो उसको समझना उसी समझ के रूप में, वो समझ ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जब आप किसी किताब में ये शब्द नामा या सींग पढ़ते हैं, तो फिर क्या उसकी समझ उसी रूप में होती है जिस रूप में भगवान बुद्ध ने सींग को बताया कि वो नामा है? तो इसमें नहीं। जरूर एक भेद होता है, इसमें जरूर हाँ एक है। अंतर होता है। तो हाँ, समझना अंतर है। अंतर है ना, तो उसको बिल्कुल। समझना ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उसे अनुभव करना, उस सच की सच्चाई को समझना। राइट अजान, शी अंडरस्टैंड्स व्हाट यू आर सेइंग। Yeah. Did Buddha say seeing? अब अजान आगे बोल रही है कि भगवान बुद्ध कहते हैं सीइंग, देखना। राइट अजान? So at moment of hearing, seeing, it's the word of the Buddha. तो जब भी हम देखने और सुनने की बात करते हैं, तो ये भगवान बुद्ध के शब्द हैं। To share the understanding of seeing that he had realized with the others. तो भगवान बुद्ध अपनी समझ हम लोगों के साथ साझा करते हैं, जब भी ये शब्द सीइंग और देखना और सुनना जब जब हम इस्तेमाल करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है आपको या नहीं? Otherwise, how can anyone understand the nature of seeing? अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या किसी को ये पता चलता उसके सीइंग के स्वभाव के बारे में, सुनने के स्वभाव के बारे में,
अगर भगवान बुद्ध हमारे साथ में अपने अनुभव साझा नहीं करते तो? नहीं पता चलता। राइट It's अजान? there now. It's there now. Sees when there are conditions for it to arise to see only. अब अजान आगे बोलती है कि जो इस वक्त शर्त लागू हुई है देखने को देखने के लिए, उसकी समझ So, को क्या समझा जा सकता है? जो so भी कंडीशन, even, yeah, what अजान did she प्लीज. say? What did she say? Ajan, she agree with you. She understand what you are saying. She is saying right. Okay, so we just see, and there is the word I am seeing, but no understanding of the truth of seeing the first round, the Arya Satya, the first Arya Satya. आशा अजान यहाँ पे बोल रही है कि देखना और मैं देखती हूँ, आई एम सीन, इसमें कोई भी अंतर नहीं है. जो पहला राउंड है पहले आर सत्य का, जब तक आपको इसकी समझ ना हो कि आप ये बिल्कुल दोनों बातें हैं, दोनों बातें क्या अगर अब देखी जाए तो अलग अलग हैं. अगर समझ है, अगर समझ नहीं है तो दोनों एक जैसी ही लगती हैं. बिल्कुल सही कह रहे हैं. राइट अजान, राइट. And and should we not understand seeing to realize seeing? तो फिर क्या हमें की देखने के सच की समझ को समझा ना जाए और उसका अनुभव ना किया जाए जो देखने का सच है? देखने के सच का अनुभव, देखने की सच की सच्चाई और देखने के सच को अजान यहाँ पे ऐसा भी बता रही है. समझ में आ रहा है ट्रांसलेशन या नहीं आ रहा है ऐसा? नहीं आ रहा, ट्रांसलेशन ठीक कर रहे हो. अजान प्लीज कंटिन्यू, शी अंडरस्टैंड्स. So, what is the destination of hearing again and again and again and again about seeing? तो फिर आशा, सच की समझ को बार बार हम बात करते हैं, बार बार उसकी बात करते हैं, तो फिर उसका समझ का लक्ष्य क्या होना चाहिए? अजान इस पे पूछ रही है. फाइनल उसका डेस्टिनेशन क्या है? फाइनल उसका लक्ष्य कहाँ तक है? फाइनल उसका लक्ष्य वहीं तक है कि हमारी समझ बढ़ती जाए परिस्थितियों के साथ, और जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ी जाएगी हमारा क्लेशर खत्म होगा और हम फाइनल डेस्टिनेशन तो वही है, निब्बान. Uh, Ajan, Asha is saying, as we talk more and more about the seeing, and as we talk about the seeing with the wisdom, with having the more and more understanding, as we listen more about the seeing, as we understand more about it, then we will have the final more and more understanding, and it will lead her towards her destination of the final understanding of it. So much reality, so many realities. We just talk about one. That's why never enough to hear about the truth of whatever is real. Right now, the time of studying Dhamma, seeing. आशा यहाँ पे अजान बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रही है कि जब आप तुम ये वाली बात बोल रही थी तो उस वक्त एक नहीं, बहुत सारी, बहुत कुछ सच्चाइयां उसमें भी थी. रियलिटी शब्द का इस्तेमाल अजान ने किया है, और वो भी काफी नहीं है उस सच को समझने के लिए, उस सच का अनुभव करने के लिए, उस सच को जानने के लिए, उस सच की सच्चाई का समझ करने के लिए. तो उसमें भी बहुत सारी रियलिटी है और वो भी कभी काफी नहीं है, इसलिए आगे आपको चलते रहना चाहिए. बिल्कुल सही कह रही हैं. राइट अजान? Feel better, pleasant, a little more. क्या तुम्हें इस वक्त अच्छा लग रहा है और थोड़ा और समझ में आया?
आशा, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, she is feeling, समझ में भी आया। Ajan, she is feeling more and more better, and she wants to hear more about it. See, this is right understanding. Don't underestimate whatever appears to be known. आशा अजान बोल रही है, यही है सही समझ। जो भी कुछ इस वक्त उत्पन्न हो रहा है, यही तरीका है, यही है वो सही समझ। बिल्कुल। राइट And अजान? when there's a little more understanding of seeing, there can be the understanding of other conditioned realities too. हाँ, आशा अजान बोल रही है, जब आपको एक सच जो कि देखना है, अगर उसकी समझ होगी और उसकी सही समझ होगी, उस सच की जो कि देखना है, उस देखने की समझ की जो सच्चाई की अगर आपका समझ हो गई, तो उस तरीके से जो अन्य सच हैं, उनकी भी सच्चाइयों की समझ आपको उसी रूप में होगी जैसे कि देखने की समझ की सच्चाई की हुई है। When there is the understanding a little more of seeing, it can be a little more understanding of hearing, smelling, tasting, touching, thinking, and other realities little by little. जैसे कि आपको देखने की समझ हुई है, इसी तरीके से आपको देखने की, सुनने की, सोचने की और अन्य सच्चाइयां हैं, उसी तरीके से उनकी भी होगी समझ। बिल्कुल। राइट अजान? Yes, but the ignorance and the attachment and all kinds of akusala is so very enormous, very, very hard not to get closer to really realize the truth. That's why it takes quite a long time to be truthful, to understand what is there now. अब आशा अजान बोल रही है कि जो जो अजान प्लीज वंस मोर, देयर वाज अ डिस्ट्रैक्शन। अजान प्लीज टेल मी वंस मोर। That's why when there is a little clearer and clearer understanding of seeing, there can be moment of also understand the moment of hearing, smelling, tasting, touching, drinking, no matter what is there, liking, disliking, when they are more considering. आशा, जिस तरीके से आपको सींग, जैसे कि उदाहरण के रूप में अजान यहाँ पे देखने को बता रही है, अगर उसकी समझ है तो उसी तरीके से आपको सुनने की और जो अन्य चीजें समझने की और सोचने की और जो है कई सारी चीजें हैं, उसकी भी समझ उसी तरीके से ही होगी जिस तरीके से आपको देखने की हुई है। बिल्कुल। So when there is the understanding of seeing a little more, there also understand that be the also of understanding hearing and at the moment as well. जिस तरीके से आपको समझ जो है देखने की हुई है, उसी तरीके से आपको समझ सुनने की भी होगी, जो कि अगले पलों में होगी, लेकिन तरीका वही होगा और समझ भी उसी रूप से ही आपको होगी। That's why start from a little more understanding of seeing. इसलिए शुरुआत होती है देखने की सच्चाई को थोड़ा और शुरुआत ऐसे ही होती है देखने की सच्चाई को समझने के लिए, देखने की सच्चाई को जानने के लिए। Is seeing real? क्या क्या सीइंग रियल है? हाँ रियल। राइट अजान, इट्स रियल। Okay. Is hearing real? Is smelling real? Is thinking real? Is यस सर। liking real? Understanding Dhamma, the moment when it's there. समझ में आया सर? यस सर। हाँ यस। राइट आई अजान? अंडरस्टैंड। So all are Dhammas, no doubt. तो ये सभी धम्म है, इसमें कोई शक? कोई भी नहीं। And Dhammas different. और सब धम्मा अलग अलग हैं? सारे धम्मा अलग अलग हैं।
राइट अजान? Can it be the same? क्या वो एक जैसे हो सकते हैं? नहीं, नो अजान. It can be the same quality, but not the same one at all. उनकी 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 जो क्वालिटी है वो सेम हो सकती है ऐसा, लेकिन वो सारे धम्मा सेम नहीं हो सकते हैं. बिल्कुल राइट अजान? That's why it keeps on going, no return at all. इसलिए वो हमेशा आगे चलते रहते हैं, कभी वापस ना आने के लिए. बिल्कुल It's this moment of seeing the same as previous moment, the same one. जैसे कि देखने के पल में जो हमारे पल होते हैं देखने के, वो हमेशा एक जैसे नहीं होते हैं. क्या अभी का बिल्कुल देखना और थोड़ी देर पहले और थोड़ी देर बाद का देखना एक होता है तो एक नहीं होता है. नहीं, उसी तरीके से अजान रिफर कर रही है. राइट अजान? So no matter when it arises, it has the quality of being the chief of experiencing the object. तो आशा अजान बोल रही है कि किसी भी तरीके का उत्पन्न हो जो अनुभव करता है, और उसकी क्वालिटी कुछ भी हो और किसी भी तरीके से उत्पन्न हो, लेकिन जो उसकी प्रकृति है, जो उसका मूल स्वभाव है, वो वही होता है, वो बदला नहीं जा सकता. बिल्कुल राइट अजान? There can be that remembrance of what has been heard, but not yet realizing the nature of it. तो ये आपको याद कराता है जो आपने सुना है, लेकिन आपको ये अनुभव नहीं कराता है. वो आपको याद कराना जो कि आपने सुना है, उसका अनुभव नहीं होता है, वो सिर्फ याद कराता है. बिल्कुल राइट So अजान? now on, so from now on, I think that you and Asha can talk about Dhamma, so I can listen about what it's about. तो Yes, तो अजान कह रही है कि आप और आशा जो है धम्म के बारे में बात कर सकते हैं, जिससे अजान आप सुने, अजान आप सुनना स्टार्ट करें. तो आप बोलिए आशा, or anyone who या listens. कोई भी. मधु इज ऑल्सो देयर अजान टुडे एंड शी वांट्स टू टॉक. मधु इज ऑल्सो देयर. बुलाओ आशा. मधु देखिए ऐसे जो अजान धम्मा की बात कर रही हैं Just ये to have सच a है. little more confidence of the truth as no I, not anyone, not anything. Dhamma is Dhamma. So very short, as soon as it has arisen, it falls away, never to arise again in samsara. डू यू अंडरस्टैंड मधु व्हाट अजान इज सेइंग राइट नाउ? हाँ, वो ये कह रही हैं कि जो भी धम्मा होता है अराइज होता है, वो तुरंत फॉल होता है, और वो ऐसा नहीं है कि वो जो है एक जो एक टाइम पे वही रहता है, दोबारा जो उठता है वो हमेशा दूसरा होता है. और साथ में अजान उसके साथ ये भी जोड़ रही है, जो उसका कॉन्फिडेंस है उसको समझ के लिए, वो उसका इंपॉर्टेंस भी बता रही है. राइट अजान? You talk with her, Asha, Akir, and Madhu, and anyone who'd like to join, please, to listen to the other's understanding and idea. आप इंग्लिश में धीरे धीरे मधु से बात करें, अजान सुनना चाह रही हैं डिस्कशन को लेकर, तो आप इंग्लिश में बात करें, मधु से अजान सुनेंगे. मधु कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं या आपस में चर्चा करो. हाँ, एक्चुअली मुझे बस एक ही क्वेश्चन है जो मैं सुन रही हूँ बीच बीच में, क्योंकि कॉल्स आ रही तो मुझे जाना पड़ रहा है. You can talk तो in मैं बस ये English also. You can talk in the English also because Ajan wants to hear the question directly. ओके, मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रही थी अभी, इसलिए कह रही थी कि कॉल्स आ रही थी. तो माय क्वेश्चन इज एक्चुअली आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग द सती वर्ड. सती, Is there only one reality or many different realities?
many different realities. For example, मधु एग्जाम्पल मांग रही है जान. Example just like example like seeing, hearing. I mean, all are different realities. Seeing, hearing, touching. if there's no understanding of seeing, hearing, smelling, and so on, how can there be the understanding of what is sati, which is different from seeing and hearing? Exactly. You're right, ma'am. That's why We don't have exactly understand, learn to understand what is there in life one by one, to begin to be acquainted with the quality right, ma'am. which says the quality, which give the quality of liking, the quality of moment of pleasant feeling, and so on, one by one, to understand that actually there must be conditions for whatever arise, because no one can smile at will without any condition at all. There must be unknown condition for whatever is there. That's why we learn to understand a little more about what is there as it is. Different moments, but the same group or the same kind of reality, conditioned to arise at different moments and then gone. So learn to understand in life what is there. For example, right now, what is there? It's heard, it's considered, it begins to be known as it's not anyone, it does not belong to anyone because it is conditioned to arise and fall away instantly. So, how can it belong to anyone? Learn to understand the truth gradually in life, to understand the difference of different reality. For example, seeing and that which is seen. See, Yes, ma'am. from It will take morning, time. from morning up to now, is a little more understanding of the differences between seeing and that which is seen if we don't talk about it. Right, ma'am. That's why hear it again, understand it anytime when there's hearing, and knowing at all how much is worn away, the ignorance and attachment. Just like holding the knife's handle, only one moment, it cannot be known how much it is worn away until it's worn away by many, many moments of touching. See, many, many moments of hearing about what seeing is right now. Otherwise, no time to think about it because the accumulation of condition to think about other things from years and years ago, and also from birth up to now. That's why learning about Dhammas as it's not anyone, and learn to understand the difference between the Dhammas. One experience the object, one cannot experience the object, and what is one experience the object, and what is one and more one and one, which cannot experience the object. And this is a way to get closer to understand the truth of what is there right now, gone all the time. The first noble truth until it is realized, not just to be intellectually understanding the truth, the nature, not enough. Right, ma'am. Is there any question? आशा कोई प्रश्न No, है? ma'am. आशा कोई प्रश्न है? अजान पूछ रही है. मधु कुछ कह रही हो आप? आशा कोई प्रश्न है? अजान नहीं। पूछ रही है. हाँ, अभी तो खैर प्रश्न वाली बात नहीं है, अभी तो खैर समझने वाली बात है. जो भी हकीकत यही है कि अगर हम समझेंगे नहीं तो आगे बिल्कुल नहीं बढ़ा जा सकता जब तक एक पल की समझ में आए. Ajan, you pointed one very important thing which Asha is referring here is that there are many more conditions which are unknown.
and that has to be understood while understanding the starting of it, that what are the many more conditions related to the understanding of the object which is just originated, just appeared. Asha is referring here. It means that Asha is interested in understanding Pajja or conditions. Is that right? राइट आजाद। तो आशा ये दिखाता है जो तुमने पूछा कि बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जो उसे समझना चाहिए। तो अजान यहाँ पे अप्रिशिएट करती है आपको कि आप बहुत इंटरेस्टेड हैं धम्म को जानने के लिए, धम्म को समझने के लिए। Understanding the name or understanding the condition right now. और उनकी जो शर्तें हैं इस पल पे, इस मौके पे जो उत्पन्न हुआ है उसमें क्या क्या है, इस मौके पे जो रियलिटीज है। राइट अजान? So just talk about one reality and then talk about conditions for that reality to arise. तो फिर अजान यहाँ पे बोलती है, तो फिर अगर इतना ही आपको जानने में उत्सुकता है तो आप एक रियलिटी से शुरुआत करिए और उस रियलिटी की जो कंडीशन है उस पे बात करिए। It has to be clear because conditions also down too. तो फिर आपको वो चीज पूर्णतया समझ में आएगी। राइट अजान? So what are we going to talk about to understand its nature and its conditions? तो आशा यहाँ पे अजान पूछ रही है, तो फिर हमें क्या बात करनी चाहिए जिससे हम उसकी कंडीशन और उसका स्वभाव समझें। तो हमें एक रियलिटी से शुरुआत करनी चाहिए, वो रियलिटी आप शुरुआत करो। हाँ, जैसे हियरिंग हो रही है इस समय, ये कंडीशन से ही अराइज हुआ है। लाइक अजान शी हियरिंग से ही बात करें। like she Ajan Asha is referring like right now the hearing is there and this hearing is by the conditions. So she said that she should start by the Dhamma hearing right now. Okay, so she has to understand what hearing is first. तब तो आपको हियरिंग क्या है उसको समझना चाहिए पहले। बिल्कुल। राइट अजान? It's now, so we begin to talk about hearing. Is she thinking about hearing? तो जब हम हियरिंग की बात करते हैं तो क्या हम हियरिंग की बात करते हैं या हियरिंग को हम सोच रहे हैं उसकी बात करते हैं? So जो हम सोच रहे हैं उससे बात करते हैं। Right, Ajan. She's saying that what? Right, Ajan. You are right. She's saying that when she is talking about the hearing, it's the thinking of the hearing which she's talking to you. Okay, what is hearing? Before talking about the conditions for hearing. तो फिर अजान पूछ रही है, तो फिर सुनना क्या है उसकी बात करने से पहले। सुनना एक धम्म है और ये जो एक्सपीरियंस कर रहा है, जो सब हमें सुनाई दे रहे हैं उसको एक्सपीरियंस कर रहा है। Ajan, she is saying that hearing is a dhamma and hearing is an experience. What the word are being heard. Really, the word or what? सही में क्या ऐसा ही है, शब्द है या कुछ और है? नहीं, अगर हम धम्मा डिस्कशन के अकॉर्डिंग बात करें, मतलब उसके अकॉर्डिंग बात करें धम्मा से, तो ये एक सच है जो अपने कंडीशन से उत्पन्न हुआ है और एक दूसरा सच है उसको एक्सपीरियंस करने के लिए। दूसरा सच है साउंड, उसको एक्सपीरियंस करने के लिए ये अराइज हुआ है। Ajan, she is saying that if we consider the word carefully, the hearing, then they are not the words, it's the sounds. So now again, what is hearing? तो फिर से अजान पूछ रही है, hearing क्या है?
hearing nama, nama. Ajahn, she's saying hearing is nama. What is the nama? Nama क्या है? नामा वो धम्मा है जो एक्सपीरियंस कर सकता है. Nama is that Dhamma which experience the reality. So there must be the reality which is experienced by that nama, right? तो फिर वहां पे एक रियलिटी जरूर होगी जो नामा एक्सपीरियंस करता है. क्या ये सही है? राइट अजान? बिल्कुल सही है. Okay, so what is heard by hearing? तो फिर सुनने में सुनाई क्या देता है? साउंड अजान. Without sound, can there be hearing? No. नो अजान. So, is hearing a condition for hearing? Is sound a condition for hearing to arise? क्या साउंड कंडीशन है हियरिंग को राइज करने के लिए? राइट अजान? It's not like the other condition, but it's the object of hearing. Hearing arises to experience it. Without the sound, hearing cannot arise. So sound is a condition for hearing to arise. Is that right? Yes. राइट Okay. अजान. राइट. There are so many different conditions. What kind of condition is sound? साउंड किस तरीके की कंडीशन होती है? साउंड कंडीशन होगा. इसको अगर रूपा को रूपा ही बोलते हैं तो रूपा कंडीशन होगा, या इसका कुछ नाम है, नाम मैं भूली हूँ. इसका कंडीशन वो भी होगा. नाम उसका भूली हूँ. समांतरा पचया होता है, अनांतरा पचया. Ajan, she has forgot the condition, but she is saying that sound is a rupa, and rupa is being conditioned by the nama. No, I just talk about condition for hearing because we are talking about hearing. So what condition for hearing to arise? Hearing को hearing arise होती है, उसकी condition क्या है? कौन condition करता है hearing को arise होने के लिए? कई कंडीशन होते हैं तब हियरिंग अराइज होता है, एक नहीं, कई कंडीशन. Ajan, she is saying it's not one, there are many conditions that hearing arises. Okay, one, please. तो फिर एक बताओ. जैसे कि विपाका पचया होता है, मतलब विपाका को जो भी नाम दिया गया हो, लेकिन जैसे एक तो विपाका होता है, वो पचया लगता है विपाक को अराइज होने के लिए, और समांतरा होगा, अनंतरा पचया होगा. She is talking about the vipaka pachya and anantara pachya. We don't talk about vipaka or anything. We just talk about moment of hearing. What is condition for hearing to arise? अजान कहती है कि उसने विपाका के बारे में बात नहीं करी, वो सिर्फ हियरिंग की बात कर रही है, और वो किस कंडीशन से अराइज हुआ है वो ये जानना चाहती है. इसका बेस्ट उत्तर क्या है? मुझे शब्द भूली होने, बेस्ट उत्तर तो यही है कि साउंड अराइज हुआ इसलिए वो अराइज हुआ. एक क्लियर है. अगर साउंड ना होता तो नहीं हो सकता वो. अजान, बेस ना होता तो भी अराइज नहीं हो सकता था. कंडीशन इसमें बेस भी अराइज हुआ है और वो भी अराइज हुआ है. आयतना पचया होगा और जो भी नाम दिया गया. बताओ अजान को, और बोलना है बोलो. नहीं, आप बताओ पहले. अजान दो तो क्लियर है. पहले बोल दो, तुम पहले बोल दो. अच्छा, तुम बोलो, मैं बोलेंगे. Ajan, she is saying that because of the sound, the hearing has arise. Sound is because of the sound, the condition is sound for the arise of the hearing. So sound is a condition for hearing to arise. We just talk about one condition one by one. So now we just talk about sound
it is a condition for hearing to arise. Is that right? Without sound, सिर्फ can अजान hearing arise? क्या बिना साउंड के हियरिंग अराइज हो सकती है? आशा, क्या बिना साउंड की हियरिंग अराइज हो सकती है? नहीं हो सकता। नो अजान, यू आर राइट। So sound must be conditioned for hearing to arise by way of aramanapatya. राइट। समझ One में आया सर? रूपा हाँ one गया by जो one हम नाम बोले थे reality. आरामना पचा बोलते। राइट अजान, राइट। That's why, as long as there must be the reality which arises to experience an object, the object is the patya, as just being aramana patya, to be experienced by that seeing or hearing. See, understand aramana patya includes every moment in life, in years and years life. Whenever the reality which arises and experience the object, there must be the object as its patya, as aramana patya. आशा देखो, अजान बड़ा महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कर रही है कि जो ऑब्जेक्ट है वही कंडीशन है, और जो कंडीशन है उसका नाम ही अरमना पच्या है। तो वो जो कंडीशन है वो सबसे पहले खुद अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, और अगर वो ऑब्जेक्ट अराइज, वो कंडीशन अराइज नहीं होगी तो वो अराइज नहीं होगा। ये बात आपको समझ में आई? राइट अजान, राइट अजान। Can chitta experience nibbana? तो फिर अजान पूछ रही है, चित्त क्या निब्बान को एक्सपीरियंस कर सकता है? यही तो थोड़ा सा यही तो फंसा है क्वेश्चन। Ajan, she saying this was the question she wants to hear from you. You please tell. Does lokuttara chitta experience nibbana? क्या लोक उत्तरा चित्ता है निब्बाना को एक्सपीरियंस करता है? देखिए मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये जानते हैं कि चार ही तत्व होते हैं, तो चित्त, चेष्टिक, रूपा, उसके बाद ही निब्बाना होता है। तो निब्बाना चित्त से अलग है, तो चित्त निब्बाना नहीं हो सकता है, क्लियर है। और न रूपा हो सकता है, तो एक्सपीरियंस चित्त करता नहीं करता, ये थोड़ा सा एक द्वंद है मेरे मन में, तो मैं क्लियर नहीं कर सकता। बताएं अजान को। हाँ हाँ बताओ। Ajan, she इसको मैं doesn't know क्लियर नहीं whether कर। the lok uttara chitta experience nibbana or not, but she's saying that there are three realities, chit, chesik and rupa. So they experience the object, that thing she knows, but she wants to hear more about the lokuttara chitta from you, about experiencing the nibbana. Next time. So I think that you can think about it, because the truth is the truth, never change at all. Chitta experience nibbana, and if nibbana is not experienced, who knows what nibbana is? Chitta experience nibbana. How can there be lokuttara chitta? See, that's why consider the truth carefully. It's the only way to understand more about Dhamma. Okay, Swatika, I appreciate